میری نئی نویلی دلہن پینڈو تھی جسے دیکھ کر مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ رات کے 2 بجے جب میں اٹھ کر نیچے گیا تو وہ مجھ پہ شک کرنے لگی۔ وہ چوری سے پیچھے آئی تو مجھے کچن میں اسے ایسے دیکھ کر گھبرا گئی کیونکہ دلہن کی نمبر 2۔ افراہیم تو آفس جا چکا تھا جبکہ وہ وہیں ٹی وی کے پاس گمسم سی کھڑی تھی۔ باقی کا وقت وہ ادھر ادھر گھر کے جائزہ لیتے رہی، لیکن ان سب سے بھی اس کی بوریت بالکل ختم نہیں ہوئی۔ حالانکہ وہاں ٹائم پاس کے لیے کافی چیزیں تھیں، میگزین اور ڈائجسٹ، یہ تو وہ پڑھ نہیں سکتی تھی۔ اور رہی بات ٹی وی کی تو وہ ڈر کے اسے آن نہیں کر رہی تھی، کیونکہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ ان چیزوں میں کرنٹ ہوتا ہے اور آن ہوتے ہی پھٹ جاتے ہیں۔ وہ بچپن کے اس ڈر کو اپنے دل سے نکال نہیں پائی تھی۔ دوپہر کا کھانا اس نے خود اپنے لیے بنایا تھا، گھر میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان چیزوں کو تلاش کرنے میں اس کو کافی وقت ضائع ہو گیا۔ امیر لوگوں کی ہر شے الگ ہوتی ہے، واش روم سے لے کر کچن تک۔ جتنا بڑا ان کا واش روم ہوتا ہے، وہاں گاؤں میں 2 کمرے اتنی جگہ پہ بن جاتے ہیں اور باقی ساز و سامان الگ۔ پہلے پہل تو وہ واش روم کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس کے شوہر محترم شادی کے تیسرے دن ہی آفس سے لے گئے اور اپنی نئی نویلی دلہن کو اتنے بڑے گھر میں اکیلے چھوڑ کر۔ اس نے کبھی زندگی میں ان سب چیزوں کی تمنا نہیں کی تھی، یہ سب تو اپنے اسے بن مانگے ہی مل گیا تھا، لیکن اتنی جلدی اتنی آسانی سے بڑی چیزیں کبھی نہیں ملا کرتی۔ عصر کی نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں گھس گئی۔ اتنی بڑی عمارت میں اس کے کام کی جگہ صرف کچن ہی تھا۔ وہ اپنے شوہر کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ بنانا چاہتی تھی، اس لیے وقت سے پہلے ہی تیار کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ آدھے گھنٹے کے کام میں وہ 3 گھنٹے تو ضرور لگا دے گی۔ اس نے کہیں سنا تھا کہ شوہر کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس کی پسندیدہ بریانی بنانا چاہتی تھی۔ اس کی پسند ناپسند اس کے بارے میں کچھ اور معلومات دادی نے عمرے پہ جانے سے پہلے اسے کی تھی فراہم کی تھی۔ چاہے وہ اس سے ناپسند کرے، چاہے وہ اس سے نفرت کرے، مگر وہ کبھی اس سے نفرت نہیں کرے گی۔ وہ ایک بیوی ہونے کا فرض ضرور نبھائے گی، چاہے وہ شوہر ہونے کا فرض نبھائے یا نہ نبھائے۔ صبح سے کچن میں مختلف الٹے سیدھے تجربات کر کے وہ اب کافی حد تک سمجھ چکی تھی۔ اسے اس کے واپس آنے کا وقت نہیں پتا تھا، اس لیے سب کچھ جلدی جلدی کرنا چاہتی تھی۔ اپنی مطلوبہ ہر شے اس نے اپنے پاس کر لیا اور اپنے پیاز کاٹنے لگی۔ پیاز کاٹنے سے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ یہ صرف پیاز کاٹنے کے آنسو تھے یا ان میں کوئی اور آنسو بھی شامل ہو گئے تھے، یہ نہیں سمجھ سکی۔ فریج سے گوشت نکال کر اس نے پتیلے میں ڈال دیے اور چولہے کی آگ تھوڑی کم کر کے وہ مغرب کی نماز ادا کرنے میں چلی گئی۔ جب نماز پڑھ کر واپس آئی تو بریانی تیار ہو چکی تھی۔ اس نے احتیاطی طور پر پہلے خود چیک کر کے دیکھا تو اسے ٹھیک لگا، لیکن پتہ نہیں اس کے شوہر محترم کو پسند آئے گا بھی یا نہیں۔ وہ اس وہ اور بھی کچھ بنانا چاہتی تھی، لیکن بریانی بنانے میں ہی اتنا وقت ضائع ہو گیا تھا کہ مزید کچھ بنانے کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ اس آہستہ آہستہ کچن سمیٹنے لگی۔ ایک بریانی بنانے کے چکر میں اس نے پورے کا پورا کچن بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی آواز سنی اور بھاگتی ہوئی کچن کے دروازے تک گئی۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شاید کچھ کھانے کا سامان بھی تھا جو اس نے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ایک تو تھکن کافی محسوس ہو رہی تھی اور اوپر سے ٹینشن اسے کھائے جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے بیگ صوفے پر پھینک دیا اور خود جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹ گیا۔ یہ شاید اس کی زندگی کے سب سے برے دن چل رہے تھے۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے زوجہ محترمہ کے درشن ہو گئے اور وہ پہلے ہی بہت ڈسٹرب تھا اور رہی سے ہی کسر محترمہ نے پوری کر دی۔ اسے یہ سوچ سوچ کر ہی تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ ان پڑھ گواہ لڑکی اس کی بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں موجود ہے۔ کافی دیر وہ یوں ہی بیڈ پر لیٹا رہا۔ جب تھکن کا احساس کافی حد تک کم ہوا تو اسے بھوک لگنا شروع ہوئی۔ واش روم میں جا کر اس نے ہاتھ منہ دھوئے اور نیچے چلا گیا۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، وہ نظر نہیں آئی، لیکن اسے خود اس طرح متلاشی ہو کر دیکھنے پہ وہ بہت غصہ آیا۔ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، اس سے اسے کیا مطلب، جہنم میں جائے اس کی بلا سے۔ لیکن ٹیبل کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا مطلوبہ شاپر گائب پایا جس میں وہ ہوٹل سے اپنے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ ویسے تو وہ ہمیشہ اپنے لیے گھر پہ کھانا خود بناتا تھا، لیکن آج تھوڑا تھکا ہوا تھا اور پریشان تھا، اس لیے اس نے ہوٹل سے کھانا خریدا لیا۔ مگر یہ شاپر اچانک کیسے غائب ہو گئی، اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ یہ ضرور اس کی جہاز زوجہ محترمہ کا کام ہوگا، لیکن وہ اس طرح شاپر لے جا کر کہاں غائب ہو گئی؟ کیا اسے بھوک لگ رہی تھی اور وہ کھانا وہ اپنے لیے لے گئی، لیکن وہ خود بھی تو بنا کر کھا سکتی تھی؟ بقول دادی کے وہ تو ہوٹلوں سے بھی اچھا کھانا بناتی ہے۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت پر ٹیک لگا دی۔ اور پھر اس نے اپنی آنکھیں تب کھولی جب اس نے ٹیبل پر کچھ رکھنے کی آواز سنی۔ وہ ٹیبل پر مختلف پلیٹوں میں کھانا لگا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو حد سے زیادہ خوش فہمی میں نظر آ رہی تھی اور پھر کھانے کے دیکھنے
देखा जो वो बेतरतीबी से टेबल पर सजा रही थी। सालन के बड़े डोंगे में उसने बिरयानी डाली हुई थी और चावलों की प्लेट में उसने सालन निकाला हुआ था। और वो सबसे अजीब बात, उसने रोटियां पतीले में रख दी और उसने गुस्सा जब्त कर लिया और सिर्फ खामोशी से उसे ये कार्रवाई करते हुए देख रहा था। जब वो कुछ मुकम्मल कर चुकी तो तब भी वो वहीं खड़ी उसे देखती रही। कुछ चाहिए, उसने सर्द लहजे में उसे मुखातिब किया। उसे मुखातिब करना उसकी मजबूरी थी। वो खाने के दौरान उसे बिल्कुल भी अपने पास नहीं देख सकता था। वो अपनी गर्दन हिलाकर दोबारा किचन में चली गई और बर्तन धोने लगी, लेकिन वो जानता था कि वो बर्तन धोते हुए भी उसे ही देख रही है। वो उसे नजरअंदाज करके खाने की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसकी लाई हुई सारी चीजों के साथ बिरयानी का भी इजाफा था। ये बिरयानी वो तो नहीं लाया था, तो फिर जरूर दादी के इस उगड़ बहू ने बनाई होगी। वैसे तो बिरयानी उसकी पसंदीदा डिश थी, लेकिन ये चूंकि इस मोहतरमा ने बनाया था, इसलिए वो उस टेबल पर मौजूद बिरयानी को छोड़कर हर डिश के साथ इंसाफ करने लगा। हालांकि उसका दिल बहुत चाह रहा था वो बिरयानी खाए, लेकिन दिल उसकी ख्वाहिश के दरमियान उसकी अना आ रही थी और वो सिर्फ बिरयानी के लिए अपनी अना का भी नहीं कुचल सकता था। खाने के बाद टिश्यू से हाथ साफ करके वो लाउंज में रखी टीवी देखने लगा। टीवी देखते वक्त भी वो पता नहीं क्यों बार बार उसे इधर उधर देख रहा था। 2 घंटे के बाद वो टीवी को छोड़कर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। हालांकि वो जो मूवी देख रहा था उसके खत्म होने में अभी आधा घंटा बाकी था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे टीवी देखने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो हर मूवी मुकम्मल ही देखा करता था। सीढ़ियां अबूर करके वो अपने कमरे में आया और कमरे में जाते ही सबसे पहली नजर उस पर पड़ी। वो फर्श पर पूरी दुनिया से बेखबर सो रही थी। कितने इत्मीनान से वो नींद की आगोश में थी। उसका सुकून छीन कर, उसकी खुशी छीनकर वो बिना कोई आवाज पैदा किए बेड पर आकर लेट गया। नींद को काफी देर तक बुलाने की कोशिश करता रहा। बहरहाल रात के जाने कौन से पहर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो चुका था। फिर उसकी आंख रात के 2 बजे खुली। उसने उस लड़की को देखा जो बेखबर सो रही थी। उसे प्यास और भूख का एहसास हुआ। अमूमन रात को उसे भूख और प्यास का एहसास होता रहता था, इसलिए वो हमेशा अपने लिए फ्रिज में खाना बचा कर रखता। लेकिन आज जहां तक उसे याद पड़ रहा था, वो जो खाना लाया था वो सारा खत्म कर चुका था। अब उसे अपनी भूख मिटाने के लिए खुद ही कुछ ना कुछ बनाना था। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाजा खोलने की आवाज से उसकी आंख खुली। उसने सबसे पहले उठकर दरवाजे को नहीं, बेड को देखा। जब उसे बेड से गायब पाया तो वो हिलाने से खड़ी हो गई और सामने दीवार पर लगी सुइयों को वाली घड़ी से उसने उस वक्त का अंदाजा लगाने की कोशिश की तो उसे हैरत हुई। 2 बज रहे थे। इतनी रात के वो बाहर क्या करने चला गया? पानी पीने? नहीं, पानी का तो जग रखा हुआ है। फिर कहाँ गया? उसे तजस्सुस होने लगा और वो कमरे से बाहर निकल आए। आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए वो संगमरमर से बनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसे किचन से कुछ आवाजें आने लगी। उसे कदमों का रुख किचन की जानब कर दिया। किचन के दरवाजे पे पहुंचकर उस पर अजीब इंकशाफ हुआ। वो रात के 2 बजे खाना खा रहा था। उसका मुंह दूसरी तरफ था, इसलिए वो उसे देख ना सका और गौर करने पर उसे पता चला कि वो उसकी बनाई हुई बिरयानी खा रहा था। ये इंकशाफ खुशगवार था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ हैरत भी थी। रात के खाने में टेबल पे मौजूद हर शय खाने वाला उसका वो शोहर मोहतरम सिर्फ और सिर्फ उसकी बनाई हुई बिरयानी को नजरअंदाज कर गया था। उसे इस वक्त बनाई हुई बिरयानी को नजरअंदाज कर गया। उसे इस वक्त हकीकतन बहुत दुख हुआ और वो किचन में काफी देर तक रोती रही। उसने इतनी मेहनत से उसके लिए बिरयानी बनाई थी और उसने चखा तक गवारा नहीं किया था। उसे गुस्सा आया अपने मगरूर शौहर पे और उसे जितना गुस्सा था, जितना दुख था, वो सब अब खत्म हो चुका था। रात के खाने में उसकी अनापरस्त शौहर ने बिरयानी का हाथ तक नहीं लगा था। अब तक के 2 बजे वो उसकी बनाई हुई बिरयानी कितनी रुगबत से खा रहा था। वो दरवाजे से वापस पलट आई और कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई। उसे पहले अगर दुख की वजह से नींद नहीं आ रही थी, तो अब वो खुशी से सो नहीं पाएगी। 20 मिनट बाद उसने दरवाजे पर उसकी आमद को महसूस किया, लेकिन वो खुद को सोता हुआ जाहिर कर रही थी, जबकि दिल ही दिल में अपने शोर की इस अजीबोगरीब चोरी पर मुस्कुरा भी रही थी। अगली सुबह वक़्त पर बेदार नहीं हो सका। उसे ऑफिस जाना था। वो आधा घंटा देर से उठा और कल की तरह आज भी सबसे पहले उसने अपने बाएं जानिब उस लड़की की बिस्तर की तरफ देखा। वो उसे वहां नजर नहीं आई। वो उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। उसे ऑफिस जाने में पहले ही देर हो चुकी थी। वॉशरूम से जब वो नहाकर तौली से लगड़ता हुआ बाहर आया तो नीले रंग की शर्ट बेड पे देखकर वो ठटक गया। वो इस्त्री करके बेड पर रख दिया गया था। इतने सारे कपड़ों में उसने नीले रंग का ही इंतखाब क्यों किया? गोया उसकी रोजा मोहतरमा का मालूम था कि नीला रंग उसका पसंदीदा रंग है, लेकिन ये उसे कैसे पता चला? उसे अपनी बीवी की ये मशरकी अदा तस्कीन नहीं पहुंचा सकी। मजीद सुलगा गई। क्यों हाथ लगाया उसने मेरे कपड़ों को? किस हक से उसने मेरी शर्ट इस्त्री की? ये वो सवालात थे जो वो गुस्से से अपने आप से कर रहा था, लेकिन वो भी अपने नाम का एक था। जब वो उसे अपनी बीवी तस्लीम नहीं करता तो वो उसकी इस्त्री किए हुए कपड़ों क्यों पहने? उसने वो शर्ट वापस अलमारी में रखी और एक सफेद रंग की शर्ट पहन ली। ये अलग बात है कि उसने सफेद शर्ट में कई
शकीन बड़ी हुई थी। अमूमन वो अपने सारे काम खुद करता था, खाना पकाने से लेकर कपड़े इस्त्री करने तक। लेकिन आज तो वो पहले ही काफी लेट हो चुका था। इसलिए जैसे तैसे वो शर्ट पहनकर, बालों में जल्दी जल्दी कंघी फेरकर वो बैग उठाकर नीचे आया। उसका नाश्ता करने को आज बिल्कुल इरादा नहीं था। वो वहीं ऑफिस में ही कुछ ना कुछ खा लेता। पहले ही काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी बड़े बड़े कदम उठाता हुआ घर के बड़े दरवाजे तक गया। अभी उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अपनी जोजा मोहतरमा की आवाज पर रुक गया। सुनो जी। उसने एक ठंडी सांस खारिज की। उसे इस तरह अपना पीछे से आवाज देकर बुलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने कोई बात तो नहीं की, अलबत्ता उसकी तरफ सवाली नजरों से जरूर देखा। जी, वो घर का थोड़ा सा सामान लाना है, उसे झिझकते हुए कहा। जबकि उसे इस तरह पीछे से बुलाया जाना, अब पूरे हक के साथ घर के सामान का ऑर्डर देना बिल्कुल नागवार गुजरा। और पता, ये नागवारी उसके चेहरे से भी अय्यां थी। क्या लाना है? चेहरा सपाट था। वो जी, चीनी और चाय की पत्ती बस। नहीं, वो सुर्ख मिर्च और प्याज भी खत्म हो गया है। वो पूरी की पूरी मशरकी अदा में मुखातब थी। ओके, और कुछ सब्जी भी खत्म हो गई है इस डब्बे से। कौन से डब्बे से? वो हैरान था। वो जी, जो अंदर रखा हुआ है, जिसे खोले तो सुर्ख बत्ती चलती है। उसने दिमाग पर जोर दिया। वो फ्रिज कहते हैं, बेवकूफ। उसने अजीब नजरों से उस लड़की को देखा। हाँ जी, वो फ्राज से नहीं, फ्रिज। उसने अपनी नजरों पे जोर दिया। क्या जी? फ्रिज। उसने भोलपन से सवाल किया। फारिज नहीं। अच्छा छोड़ो, ये बात बताओ, और क्या क्या लाना है? और दांत पीस कर बोला। दही बीजी। और वो कुछ सोचने लगी। अगर उसकी कोई पढ़ी लिखी बीवी होती तो वो 1 मिनट में ही लिस्ट बना कर देती उसे। लेकिन ये गांव की गवार उसे 2 घंटों से घर का सामान रटवा रही थी। कुछ याद आया मोहतरमा, या फिर मैं यहीं बैठकर आपकी याददाश्त वापस आने का इंतजार करूं? उसने तंजिया भरे लहजे में उससे मुखातब किया। वो पता नहीं उसकी तंज को समझ सके या नहीं, बहरहाल उसने अपनी जुबान को थोड़ी तकलीफ जरूर दी। वो जी, वो जो लाल सी होती है। अब उसे हकीकतन गुस्सा आया। लाल लाल सी को एक चीज भी नहीं होती। क्या मैं बाजार में जाकर ये कहूंगा कि मोहतरमा बानी साहिबा किसी लाल चीज का कह रही थी, आप मुझे वही लाल चीज दे दें? अब की बार वो गुस्सा नहीं छुपा सका और उस गुस्से से डर गई। मैं सब सौदे भिजवा दूंगा, ओके? उसकी आंखों में भरे वो आंसू देख चुका था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो उसके सामने कोई सैलाब जारी करे। वो कहता हुआ बाहर निकल गया और वो वहीं खड़ी अपने आंसू पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। उसे दुख इसके रवैये से नहीं, बल्कि इस बात से पहुंचा कि वो शर्ट जो उसने इतनी मोहब्बत के साथ इस्त्री की थी, वो क्यों नहीं पहन कर गया। बाकी का सारा दिन भी वो उदास रही और उसने दोपहर को ही एक मुलाजिम के जरिए घर का सामान राशन भेज दिया था। वो भी उसने कहा और वो भी जो ना कह सकी। बाकी का सब सारा वक्त उसने सामान को तरतीब देने में गुजार दी। इसलिए उसे कुछ सोचने की मोहलत ही ना मिली। सब्जी आ चुकी थी। उसने कुछ सब्जियां फ्रिज में डाली और रात के खाने के लिए तैयारी आलू और कीमा अलग करने लगी। अब वो एक काम में तो माहिर हो चुकी थी, खाना बनाने में। ऐसा नहीं था कि उसे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन उसे अजीब किचन में खाना बनाने का उसका तजुर्बा नहीं था। यहाँ सब काम आसान थे। गांव की निस्बत यहाँ चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढ 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 कर नहीं लानी पड़ती थी। पानी का इंतजाम पास में ही था और हर चीज अलग अलग साफ नजर आ रही थी। जबकि वहां सालन में नमक डालो तो 2 घंटे तक मिर्चों का डब्बा ना मिले। यहाँ सारी सहूलियात होने के बावजूद भी वो शुरू शुरू में कुछ झिझक रही थी। लेकिन अब चूंकि वो किचन के बारे में काफी मालूमात हासिल कर चुकी थी, इसलिए उसे काम करने में बहुत मजा आ रहा था। रोज बरोज नई नई चीजों से आशना हो रही थी और कीमा तैयार होने में अभी काफी वक्त था। इसलिए वो अपने कमरे में आई और उसे एक बार उसकी सहेली ने बताया था, बानी, ये जो शहरी मर्द होते हैं ना, उनको क्रीम पाउडर वाली लड़कियां बहुत पसंद आती हैं। इस वक्त तो उसने इस बात पर गौर नहीं किया, लेकिन अब चूंकि मुसीबत सर पर आन पड़ी थी तो उन सब चीजों को इस्तेमाल करना था। वो मेकअप का डब्बा जो दादी ने उसे दिया था, वो जूं को तू पड़ा हुआ था। उसने उसे हाथ नहीं लगाया था। उसे मेकअप से हमेशा चिढ़ हुआ करती थी। उसे अच्छे से मेकअप तक नहीं आता था। उसने कभी मेकअप किया ही नहीं था, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। वहां पे भी सिर्फ साबुन से मुंह धोया करती थी। उसने अपनी पुरानी लोहे की पट्टी से वो मेकअप अब वाला डब्बा बाहर निकाला। इस डब्बे में ऐसी चीजें थी जिनके नाम तो दूर शक्ल तक भी कभी नहीं देखी थी उसने। अब ऐसे में इन्हें इस्तेमाल करना काफी मुश्किल था। उसने सारा सामान उलट पुलट कर देखा। उसे इन सैकड़ों चीजों में जो काम की चीज लगी, वो मुंह पर लगाने वाली क्रीम, लिपस्टिक और आई शेड थी। बाकी सारा का सारा सामान इसके लिए बेकार था। ये तीनों चीजें लेकर वो आईने के सामने बैठ गई। करीम तो जैसे तैसे लगा ही लिया उसने। आई शेड भी तरतीब और बेतरतीबी से लग गया। अब असल मसला लिपस्टिक का था। उसने कभी खुद लिपस्टिक नहीं लगाया था। बचपन में भी जब कोई शादी वगैरह होती तो उसकी कजन उसके जबरदस्ती लिपस्टिक लगाया करती थी।
उसे इन सब चीज़ों में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। 10 मिनट बाद उसने लिपस्टिक लगाया और अब की मर्तबा भी सही ना लगा सकी, लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। वो तब तक लगाती रही जब तक सही नहीं लगा। वो 20 मिनट की मशक्कत के बाद बहरहाल उसने कुछ ढंग से लिपस्टिक लगा ही ली। उसे बाहर परफेक्ट तो खैर अब भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन पहले की निस्बत काफी बेहतर थी। उसने नीले रंग की फ्रॉक पहनी रखी थी। नीला रंग उसके पसंदीदा रंग था, इसलिए उसने उसकी पसंद से ही खुद को तैयार किया था। जारी है।